Good morning, students. In continuation of my lecture, as you know that we are discussing section 10 of Indian Contract Act 1872, and we have discussed the first essential offer and acceptance, second important essential legal relationship, third important essential lawful consideration, and within the lawful consideration we have discussed quid pro quo. Quid pro quo. Q-U-I-D. Quid pro quo. Quid pro quo. Do you know what is the meaning of quid pro quo? When one gets something, in return of something. In return of something. When one gets something in return of something. इसकी हिंदी है जब कोई व्यक्ति कुछ लेता है कुछ देकर, जब कोई व्यक्ति प्राप्त करता है कुछ देकर। कहने का अर्थ है दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। मैंने आपको उदाहरण भी दिया। कंसिडरेशन जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि एक कहता है कि मेरी एक कार है, इसको मैं 50,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, और बी उस पर रजामंद होता है, उस पर सहमत होता है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? ए के द्वारा जो कार बी को दिया जाता है और कार के एवज में बी के द्वारा जो 50,000 रुपया ए को दिया जाता है, कार और 50,000 रुपया इस दृष्टांत के तहत प्रतिफल है। पूरी बात क्लियर हो गई होगी कंसिडरेशन को लेकर। क्विड प्रो क्यो। टुडे वी विल डिस्कस द फोर्थ इंपॉर्टेंट एसेंशियल कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। Competency of party means capacity of parties means the parties must be competent in a contract. It is also very essential that contracting parties must be competent. If you want to enforce the contract, अगर आप अपने संविदा को परिवर्तन करवाना चाहते हैं, परिवर्तनीय करवाना चाहते हैं, with the help of the law enforcement agencies, which includes the court, advocates, judges, and those who comes within the peripheral of law enforcement agency. If you want to take any help from the law enforcement agencies, your contract must have amongst the party those who are competent, those who fulfill the competencies, and this essential is also very important. If amongst the party, if the contracting parties are not competent, then the contract may be treated as a void or void ab initio contract. अगर संविदा सक्षम पक्षकारों के बीच नहीं होता है, यदि संविदा सक्षम पक्षकारों के बीच नहीं होता है, तो संविदा शून्य अथवा प्रारंभता शून्य घोषित की जा सकती है। इसीलिए आप समझ सकते हैं इसके इंपॉर्टेंस को भी आप समझ सकते हैं कि पक्षकारों की सक्षमता संविदा के परिवर्तन करवाने में कितना महत्वपूर्ण है। संविदा के पक्षकार कॉम्पिटेंट हो, तो कॉम्पिटेंसी में जो फर्स्ट आता है, द पार्टी मस्ट बी ऑफ मेजोरिटी। पार्टीज मस्ट बी ऑफ मेजोरिटी मीन्स party must attain the age of majority. Party must attain the age of majority. यहाँ पर उम्र की बात मैं कर रहा हूँ। age of majority means party
संविदा के पक्षकारों का उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, अर्थात 18+। यदि आप संविदा करने जा रहे हैं तो पक्षकारों का उम्र पर गौर करिएगा। पक्षकारों के प्राप्त वय को लेकर संजीदा रहिएगा, गंभीर रहिएगा। जब आप प्राप्त वय के बीच अर्थात 18 वर्ष के मध्य संविदा करते हैं तो संविदा के प्रवर्तन करने में आपको सहूलियत होगी, आपको राहत रहेगी। You will get the justice from the court of law. The second important thing, parties must be of sound mind. Parties must be of sound mind. Sound mind. स्वस्थ चित्त के हों, पक्षकार स्वस्थ चित्त के हों। स्वस्थ चित्त का क्या अर्थ? What is the meaning of स्वस्थ चित्त, sound mind? When you will go through the spirit of sound mind, you shall have got an experience that a person, that may be of he or that may be of she, is indulging himself or herself in doing some work. That very person shall easily analyze whether the nature of the work is good for him or the consequence of that act is lawful or illegal. That must be considered by the person who is indulging himself or herself in an act. मेरे कहने का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कार्य के अंतर्गत करार भी हो सकता है, संविदा भी हो सकता है, कोई भी कार्य, यदि कार्य की प्रकृति को लेकर उसके पास संपूर्ण समझदारी है, कार्य के परिणाम को लेकर वह पूर्ण रूप से अवगत है, तो हम ऐसे व्यक्ति को साउंड माइंड भी कह सकते हैं। साउंड माइंड हम कहेंगे। तो साउंड माइंड हो, व्यक्ति साउंड माइंड हो। यदि व्यक्ति साउंड माइंड नहीं रहेगा तो संविदा वह नहीं कर सकता है। मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन इसी क्रम में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टी मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। पार्टी मस्ट नॉट disqualified from contracting by any law to which he is subject. Means party must not be disqualified. संविदा के पक्षकार किसी भी विधि के तहत निषिद्ध न घोषित किए गए हों कि वह संविदा नहीं कर सकते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और संविदा के पक्षकार निषिद्ध न घोषित किए गए हों स्पष्ट तौर से किसी भी विधि के तहत। जैसे if a court has declared with their verdict, with their judgment, that particular person is absconded, अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा है तो that very particular person shall not be entitled to make a contract, shall not be entitled to make a contract as a contracting parties when the contract is going to have in between the party. Means अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया है तो वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं हो सकता। और इफ एनीवन, अगर कोई भी व्यक्ति दोष सिद्ध है किसी भी अपराध को लेकर और न्यायालय का निर्णय आ चुका है और वह अपनी सजा मतलब जेल में वह व्यतीत कर रहा है वह व्यक्ति, तो वह जेल में रहने वाला व्यक्ति भी
विधि की दृष्टि में निषिद्ध माना जाएगा और संविदा का पक्षकार नहीं हो सकता है। मीन्स these three things ensures the competency of the parties. संविदा के पक्षकार पहली बात एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन करते हो। नंबर 2, the contracting parties must be of sound mind and the contracting parties must not be disqualified from any law to which he is subject. ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और बता दें, व्हाट आर दी फ्लॉज ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज। किस चीज की मतलब हु आर नॉट entitled to make a contract as a party। कौन कौन से व्यक्ति संविदा नहीं कर सकते, हम उसके बारे में बता रहे हैं। पहला है माइनर नहीं कर सकता, 18 वर्ष से कम उम्र का बालक नहीं कर सकता है, 18 माइनस संविदा नहीं कर सकता है। नंबर 2, ल्यूनेटिक, इडियट, आइडियल इडियट एंड ड्रंकननेस। इतने व्यक्ति संविदा नहीं कर सकते हैं। एंड द माइनर a person who is below of 18 years of age shall be considered as a minor। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है वह अल्प वय माना जाता है, उसको माइनर कहा जाता है। वह माइनर संविदा के पक्षकार नहीं हो सकता, अर्थात संविदा नहीं कर सकता। नंबर 2, ल्यूनेटिक और इडियट में अंतर है। ल्यूनेटिक का अर्थ होता है वह व्यक्ति, वह इंसान जो किसी दुर्घटना मतलब वह व्यक्ति जन्म से सही था, जब वो जन्म लिया था तो वह मस्तिष्क की दृष्टि से, दिमाग की दृष्टि से ठीक था, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी शॉकिंग न्यूज के सुनने के कारण, किसी भी दुर्घटना की वजह से वह विकृत चित्त का व्यक्ति हो जाता है। और इस ल्यूनेटिक की कंडीशन में एक चीज और रहता है कि 70 से 80% जिसमें संभावना ये भी रहती है कि यदि प्रॉपरली मेडिकल ट्रीटमेंट अगर उनका हो तो स्वस्थ चित्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे केसेस को हम ल्यूनेटिक कहते हैं। इडियट मीन्स वह व्यक्ति जो पैदाइशी पागल हो और जिसमें 90% या 80% की संभावना यह भी रहती है कि कुछ भी प्रयास कर लिया जाए वह व्यक्ति की जो विकृत चित्तता है वह ठीक नहीं होगा। हम ऐसे केसेस को इडियट कहते हैं। इडियट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और ड्रंकननेस मीन्स वह व्यक्ति जो मदोन्मत्त हो, जो किसी प्रकार का नशीला चीज लेता हो, ऐसे व्यक्ति को हम ड्रंकननेस कहते हैं। एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ड्रंकननेस एनीवन कैन नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। एंड दीज आर द फ्लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्लॉज FLAWS, these are the flaws of contract and these parties are not, these types of persons, ऐसे व्यक्ति संविदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि संविदा करते हैं तो संविदा शून्य मानी जाएगी। बात पूरी क्लियर हो गई होगी। जैसे आप CBSE लॉ कॉलेज में आ रहे हैं एडमिशन लेने, तो LLB में एडमिशन और BLLB में एडमिशन के लिए कुछ कॉम्पिटेंसी तो निर्धारित है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे आप यदि 3 वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 45% जनरल के लिए, OBC के लिए 42%, SC के लिए 40%, 40%, ये मिनिमम एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। जो व्यक्ति, जो छात्र इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही CBSE लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो जैसे एक कॉम्पिटेंसी निर्धारित की गई है कि द कैंडिडेट्स हु आर इंटाइटल्ड, हु आर कॉम्पिटेंट टू टेक एडमिशन लॉ कोर्सेज ऑफ 3 years and BLLB 5 years in CBSE लॉ कॉलेज, तो
सीबीएसई लॉ कॉलेज में वही एडमिशन लेगा जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक वैसे ही संविदा करते समय भी ये जो कॉम्पिटेंसी है, इस कॉम्पिटेंसी को आपको मानना अति आवश्यक है, जरूरी है, मैंडेटरी है, आदेश आता है। इसके बाद का एक पॉइंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट it is also very important, essential of the formation of a contract. At the time of the making of the contract, this essential must be maintained by the parties, otherwise the status of the contract may be of void, may be of voidable. Later on in coming classes I will discuss what shall be the status if we will not follow this essential free consent. The fifth important essential, free consent, FREE, free consent, स्वतंत्र सम्मति, हिंदी इसकी है स्वतंत्र सम्मति, स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट। कंसेंट हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to just give a short message on consent. Consent क्या होगा? सम्मति। Two or more parties are said to consent when they agree upon the same thing, when they agree upon the same thing at the same sense, मीन्स दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच सम्मति है। कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? जब वह किसी एक विषय पर एक ही इरादे के साथ रजामंदी जाहिर करते हों तो हम उसको कंसेंट कहेंगे। Two or more parties are said to consent when they agree upon the same thing at the same sense. This is the definition, or you can say the clear-cut idea about the term of consent, सम्मति। Consent आप समझ लिया। और free, when the consent shall be treated as a free, the consent shall be treated as a free when you will not get the consent from all of those things. Number one, पहला कंसेंट यदि आप कोएर्सन से नहीं लेते हैं। नंबर वन, कोएर्सन, COERCION, कोएर्सन मीन्स बलपूर्वक। नंबर टू, undue influence, असम्यक असर। अगर हिंदी में कहीं कोई आएगा तो उसको देख लीजिएगा, असम्यक असर, फ्रॉड, FRAUD, कपट, coercion and influence, fraud. Number 4, misrepresentation, misrepresentation. Number 5, mistake। अगर किसी भी सम्मति में, यदि पक्षकारों की सम्मति में, देने और लेने में यदि इन हथकंडों को अपनाया गया तो वहां मैं कहूंगा, वहां यह विधि कहती है, वहां भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कहता है कि वह सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो संविदा के पक्षकारों को सदैव सम्मति स्वतंत्र हो ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। एक बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्री कंसेंट को लेकर, जिसमें आप स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कोएर्सन की डिफिनेशन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन का, और मिस्टेक मतलब भूल। आपको स्पेसिफिकली सेक्शंस में मैं डील करूंगा व्हाट्स द डिफिनेशन ऑफ कोएर्शन,
क्वेश्चन जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ लीजिए कि कंसेंट का प्रभाव क्या होता है। जैसे ए ने बी को एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव क्या दिया? ए ने कहा कि आपकी एक अमुक जमीन यक्स है, यक्स जमीन है, और मैं यह चाहता हूं कि यह जमीन आप 1 लाख रुपए में मुझे बेच दीजिए। ठीक, एक प्रस्ताव देता है बी के पास से प्रस्ताव जाता है, और एक प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रभावशाली इन द सेंस आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश लेवल में प्रभावशाली व्यक्ति किन लोगों को कहा जाता है? प्रभावशाली व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति ठीक ठाक न हो, वो जमीन को लेने के लिए बी पर बल देता है, अंदरूनी तौर से बल देता है, किसी भी प्रकार से दबाव देता है कि आप अपनी जमीन हमको इतने में बेच दीजिए, अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होगा। तो वह बेचारा डर के मारे बी सम्मति दे देता है। तो यदि ऐसी सम्मति बी देता है तो मेरा अधिनियम, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कहता है ऐसे सम्मति को, बी के द्वारा दी गई सम्मति को स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन बी डिक्लेयर्ड द कॉन्ट्रैक्ट एज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप संविदा को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर सकते हैं फ्री कंसेंट न होने के कारण। लेकिन इसमें बी को आगे आना पड़ेगा, कोर्ट में बताना पड़ेगा, कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा, एंड द कोर्ट विल डिलीवर द जजमेंट टू द विक्टिम हु इज रियली a loser in this contract, and ensure the justice with the help of the spirit of the Indian Contract Act 1872. Later on, कहने का अर्थ है question, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. These things must not have at the time of the making of the contract. Consent must be taken freely, not forcefully, not fraudulently, not unjustly, not misrepresentationally, not mistakenly. Otherwise, the status, the future and the fate of the contract shall be in danger, and the contract shall be declared void ab initio. Thank you very much. In coming lecture, I will discuss the lawful object and 5 essentials I have discussed. I hope so that you all have understood the whole lecture and you shall have no problem. If you have any problem, you shall have welcome in CV Singh Law College to discuss each and every topic. I shall always be available in CV Singh Law College. Thank you very much. Have a nice day.